Well, it's election season and the heat can be felt throughout the country. And I'm sure you must have came across videos comparing Modi and Rahul Gandhi. And I'm sure कि आपने वो वाली वीडियोस भी देखी ही होंगी जिसमें राहुल गांधी को क्लियरली एक टर्म या एक कंफ्यूज हाथ में दिखाया जाता है। अब इवन दो इनमें से काफी सारी वीडियोस आर एडिटेड या फिर क्रॉप्ड बट दे स्टिल डोंट फेल टू शो राहुल गांधी एज अ क्लाउन। एंड ऐसा नहीं है कि सिमिलर ब्लंडर्स मोदी जी नहीं करते या कांग्रेस और उनके सपोर्टर्स ऐसे एडिट्स रिलेटेड टू मोदी जी फ्लोट नहीं करते। बट फिर भी वी सी दैट इन जनरल पब्लिक परसेप्शन Rahul Gandhi is considered as Pappu, dumb, kiddo, and whatnot. And on the other side, Modi ji is still considered as a strong leader with good communication skills. So, what exactly is wrong with Mr. Gandhi? Why is he perceived as Pappu despite heavy social media campaigns and counter social media posts from Congress and its supporters? And why not similar title is allotted to Mr. Modi? Let's analyze. So, to understand this comparison better, let me tell you a short story जिससे आपको ये समझने में आसानी होगी and we could probably draw some beautiful analogies to understand today's topic. So this is a real story जो मेरे साथ अभी हाल ही में हुई थी and so for those of you who don't know, I am an engineering student और मैं अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई एक काफ़ी अच्छे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से कर रहा हूँ। अब I don't want to name it, but it's among the top colleges in India and people prepare hard to get in one of those. So I guess आप समझ गए होंगे कि कौन से इंस्टीट्यूट की मैं बात कर रहा हूँ। So recently, हमें क्लास में प्रोफेसर ने अनाउंस करा that she'll be conducting a debate and she divided the class in two teams. And the topic given to us was genetically modified crops should be legalized and sold freely. So I was the team which was given against the motion and hence we didn't prepare any intro because हमने सोचा था कि the for motion वाली side will speak the intro and we will simply have to rebut them. But professor had different plans on the day of debate. Because on the day of debate, फॉर वाली टीम में काफी सारे प्लेयर्स आए ही नहीं एंड द प्रोफेसर सेड कि एक बंदा सिर्फ एक बार बोल सकता है सो उससे से पहले अगेंस्ट वाले बोले सो दैट वी कुड कवर एवरी स्पीकर। नाउ आफ्टर हियरिंग दिस फ्रॉम द प्रोफेसर वी हैड जस्ट 2 minutes to go for the intro speech and our team being unprepared for it and not wanting to lose our good repertoires and good speakers onto it because सबको एक ही मौका मिलना था बोलने का। I simply wrote on ChatGPT, "Can give me a 1 minute speech on the topic against the motion and ask the guy who speaks less to speak and go for it. Now let's name that guy Chachinder for the moment." तो मैंने उसको दिया फोन एंड कहा टू रीड इट लाउड बट टू माई सरप्राइज एंड टू एवरी वन एल्स सरप्राइज उस बंदे ने मेरा इशारा समझा नहीं एंड ही वेंट फॉर द स्पीच एंड सेड कि जीएमओ क्रोप से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस आ जाता है। दैट्स इट, दिस वाज आवर इंट्रो स्पीच कि जीएमओ क्रॉप से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस आ जाता है, नथिंग एल्स। Chachander didn't bother to explain, introduce or say anything else but this. And let me remind you again, ये हमारा intro था, the first ever line from the against side. And before you argue saying कि भाई वो बंदा introvert हो सकता है, maybe उसे stage fear होगा, etc. etc. So hear me out. He is my classmate and I know him personally. Yes, he is an introvert. He speaks less, but that is not the objective here. मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ कि चचंदर बीइंग अ गाय स्टडीइंग इन टॉप इंस्टीट्यूट ऑफ द कंट्री डज नॉट नो कि इंट्रो स्पीच में क्या बोला जाता है। दैट इज द ऑब्जेक्टिव। देखो, आई विल मेक इट इजी फॉर यू। मैं खुद एक इंट्रोवर्ट हूँ एंड आई नो कि हाउ डिफिकल्ट इट इज इन सोशल कंडीशंस टू स्पीक, बट एज एन इंट्रोवर्ट मुझे या किसी भी इंट्रोवर्ट को इंक्लूडिंग चचंदर ये तो पता ही होगा ना कि व्हेन यू मीट समवन इन अ सोशल सेटिंग उसे क्या बोलना है, कैसे ग्रीट करना है या वगैरह वगैरह। हाँ, वो बात अलग है कि हम कर नहीं पाते बिकॉज ऑफ नर्वसनेस या फिर सम अदर एक्स वाई जेड रीजन। सेम गोज विद स्टेज फियर। अगर किसी को स्टेज फियर है तो वो बोलने में हेजिटेट करता है एंड काफी बार ब्लैंक भी हो जाता है। बट दिस डज नॉट मीन कि इफ ही हैड प्रिपेयर्ड फॉर लेट्स से टॉपिक एक्स एंड वहां स्टेज पे नर्वसनेस की वजह से वो किसी और वाई टॉपिक के बारे में बोल के आ जाए, he will definitely speak something related to topic X ना। Same thing when you are in a social setting,
यू नो कि तुम्हें सामने वाले बंदे से उसका नाम, काम और बाकी लाइफ के बारे में पूछना है, बिकॉज यू आर मीटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। अब नर्वसनेस के कारण तुम कुछ कम ज्यादा पूछो तो अलग बात है, बट इफ यू आस्क द पर्सन हु आर यू, तो नेचुरली सामने से जवाब उसका नाम ही आएगा ना कि ही विल रिप्लाई बाय सेइंग कि आई एम अ ह्यूमन बीइंग, बिकॉज ये तो नोन है कि व्हेन यू आर आस्किंग समवन हु आर यू, तो वो अपना नाम ही बताएगा। बट अब जस्ट इमेजिन करो कि तुमने किसी से पूछा कौन हो तुम या फिर हु आर यू, एंड सामने से जवाब आया कि आई एम अ ह्यूमन। तुम्हारा क्या रिएक्शन हो? या फिर मानो कि इंडिपेंडेंस डे के दिन कोई स्पीकर दिवाली पर स्पीच देने लग जाए ड्यू टू नर्वसनेस, क्या रिएक्शन होगा तुम्हारा? Wouldn't you creep the shit out of yourself? And even worse, that is normal and usual for the other person जिसने ये कांड किया है। वो तुम्हें कहता है आके कि भाई मैं तो इंट्रोवर्ट हूं या मेरे को स्टेज फियर है, एंड मेरे साथ ही होता रहता है। टेल मी व्हाट विल योर रिएक्शन बी? तुम्हें अजीब नहीं लगेगा? सो द सेम थिंग आई एम ट्राइंग टू से हियर कि छछुंदर भाई को पता ही नहीं था कि व्हाट डज इंट्रोडक्शन मीन। फॉरगेट अबाउट स्पीकिंग स्किल्स, फॉरगेट अबाउट स्टेज फियर, मैं उस सब की बात ही नहीं कर रहा। ऑल दैट आई एम सेइंग इज कि भाई को पता ही नहीं है कि कब क्या बोलना है, और एटलीस्ट what is expected from him to speak at that particular moment. And this is not just him. There are many people like Sachindar in our country, in fact holding the top positions, जिन्हें पता ही नहीं है कि कब उन्हें क्या बोलना है। Now, this is of course because of the problems in our education system. Well, उससे किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे, but for now let's relate this story to the topic of the video, that is Rahul Gandhi versus Modi. नाउ आई हैव अ स्मॉल रिक्वेस्ट। अगर आप वीडियो में यहाँ तक आ चुके हैं एंड आपको सारी वीडियो समझ आ रही है, सो आई वुड हाईली रिक्वेस्ट यू टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। इससे ना ही मुझे मोटिवेशन मिलता है, बट यूट्यूब एल्गोरिथम मेरी वीडियोज़ को पुश करता है टू अदर ऑडियंस। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो। एट विल ओनली टेक 1 सेकेंड। नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। खैर, वीडियो में वापस आते हैं और अब फाइनली एनालाइज करते हैं राहुल गांधी एंड मोदी जी की सिचुएशन को, और अंडरस्टैंड करते हैं कि क्या एग्जैक्टली गलत है राहुल गांधी के साथ, बिकॉज दैट्स व्हाट इंटेलिजेंट पीपल डू, राइट? अब देखो, चाहे आप बीजेपी सपोर्टर हो या कांग्रेस सपोर्टर, एक बात से तो आप एग्री करोगे कि मोदी जी का कमांड इन स्पीकिंग स्किल्स एंड कनेक्टिंग विद द ऑडियंस इज मच बेटर देन राहुल गांधी। बट दैट शुड नॉट बी द ओनली फैक्टर वाई राहुल गांधी इज ट्रोल्ड, राइट? अब ऐसे तो अमित शाह जी का कम्युनिकेशन स्किल्स भी इतने बढ़िया नहीं है, बट येट ही इज नॉट ट्रोल्ड लाइक राहुल गांधी। So, what is that factor which results in Rahul Gandhi being trolled so much? So, the answer is ignorance. Yes, Rahul Gandhi is ignorant or unaware of what he is doing. अब जैसे हमारे छछुंदर भाई को पता ही नहीं था कि इंट्रो में क्या बोलते हैं, एंड ही जस्ट गिव दैट वन लाइनर, एंड उसके हिसाब से दैट वन लाइनर वाज द बेस्ट वे टू इंट्रोड्यूस। वैसे ही हमारे राहुल गांधी जी को पता ही नहीं है कि व्हाट एंड हाउ टू से इन पब्लिक, एंड इसलिए काफी बार आपने देखा होगा कि हिज कलीग्स या फिर हिज एसोसिएट्स करेक्ट हिम ड्यूरिंग द स्पीच। उनके एसोसिएट्स या उनके वेल विशर्स तो कोई बड़े मिस्टेक को ही ठीक कर पाते हैं। बट लेट्स लुक एट दिस वीडियो जिसमें वो कहते हैं कि आलू से सोना बनाया जाएगा। ऐसी मशीन लगाऊंगा, इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोना निकलेगा। आई एम श्योर कि आपने ये वीडियो तो देखी ही होगी, बट अगर आपने ये वीडियो पूरी देखी है या फिर ये स्पीच पूरी सुनी है, तो इसमें राहुल गांधी इज नॉट सेइंग दिस। उनके पूरे वर्ड्स ये थे। किसानों को कहा, ऐसी मशीन लगाऊंगा, इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोना निकलेगा। इस साइड से आलू डालो, उस साइड से सोना निकालो। इतना पैसा बनेगा, आपको पता नहीं होगा क्या करना है पैसे का। मेरे शब्द नहीं है, नरेंद्र मोदी जी के शब्द हैं। जी हाँ। एंड जो वीडियो हमने नेट पे या इंटरनेट पे सर्कुलेट होती हुई देखी, दैट वाज अ एडिटेड वीडियो circulated mostly by BJP and BJP supporters. That's not the problem here. The main question is कि how is BJP able to edit and crop the videos and circulate them in a way
कि वो वायरल हो जाती है एंड इट इज बीइंग यूज्ड अगेंस्ट राहुल गांधी। बट कांग्रेस ऐसा काम क्यों नहीं कर पाती है? तो द आंसर लाइज इन द वीडियो इटसेल्फ। अगर अब आपने ये पूरी स्पीच सुनी होगी राहुल गांधी जी वाली, तो आपको कहीं से भी ऐसा नहीं लगेगा दैट ही इज ट्रोलिंग बीजेपी। It looks like he's communicating his own idea. He speaks it so seriously. I mean, this is not how you troll somebody with a serious face. It's like you're putting your own agenda. अब इसके कॉन्ट्रास्ट में हम मोदी जी को देखते हैं कि वो कैसे मजाक उड़ाते हैं ऑपोजिशन का। आपको भी पता है कि अचानक 8 तारीख को रात को 8 बजे So, do you see the playfulness and sarcastic smile on his face? You can clearly tell that he's in a mood to troll somebody. अब अगर आप इस वीडियो को मोदी जी की जो ये वीडियो है इसको आप क्रॉप करके सर्कुलेट भी करेंगे तो सिंपली उनकी बॉडी लैंग्वेज से पता चल जाएगा that he is in mood of trolling somebody and he is not the one who is actually throwing his agenda. And this is the biggest problem with Rahul Gandhi. Despite holding a degree from Harvard, वो समझ ही नहीं पाए बेसिक बॉडी लैंग्वेज साइंस को एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस को। एंड दिस थिंग इज एब्सोल्युटली नॉर्मल फॉर हिम। I mean, he's such a big politician. If he wanted, he could have learned them anytime. But he chose to be ignorant. Just like our Chachinder Bhai. And just like Chachinder Bhai is putting the blame on his sinus and stage fear rather than addressing the real issue. Similarly, Rahul Gandhi is putting the blame on BJP IT cell, yeah, the followers of BJP, whom he refers to as thugs, for his trolling, and not addressing the real issue of his non-competencies. बिकॉज आईटी सेल एंड फॉलोअर्स तो कांग्रेस के पास भी है। अब चलो उतने ज्यादा नहीं है जितने बीजेपी के पास है, पर एक टाइम पे तो बीजेपी से भी ज्यादा थे। तो इट इज द इग्नोरेंस ऑफ राहुल गांधी दैट ही इज बिंग ट्रोल्ड। सिमिलरली हमारी लाइफ में भी काफी बार ऐसे सिचुएशंस आते हैं वेयर वी हैव सम प्रॉब्लम बट वी कीप इग्नोरिंग इट एंड फोकसिंग ऑन द अदर साइड। बाय द वे, congratulations if you made it till here in the video and understood everything. Congratulations, you're among the top 10% of the people in India. Inga's attention span and logical reasoning is better than 90% of the people. So, do consider subscribing because we intelligent people need to come together and form a community. क्योंकि आजकल हर जगह छपरी लोग dominate कर रहे हैं and that is just because they build connections. So, if you want your intelligence and hard work to flourish, to hit the subscribe button. I'll keep posting informative videos like these for my intelligent public. So thank you so much. I'll see you in the another video. Jai Hind.